morning, everyone. So, as we were continuing this series of static questions that are very much relevant for your 2020 and the 2027 attempt of your CVT examination. Also, this series would be very helpful for people who are preparing for different law entrance examination. In case you are preparing for any of those law entrance examinations like CLAT, ALET, or let's say, watch this. This is gonna be really helpful for you. So, in case if there is this portion of static GK coming in your examination, make sure that you are going through the playlist, because as far as we are concerned, no question goes out. 12th लेवल पे अगर आप ये एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन दे रहे हो, मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट के बाहर से सवाल नहीं बनता. Should like follow this very religious. Every Monday, Wednesday and Friday, try to upload around 25 questions. I would request you to solve. Also, I wanted to inform you, in case you are looking for a full-fledged course, like if you like this class and you think that level up can be beneficial for your preparation, so in case for a comprehensive, that would be your paper 1, which is your language paper, then your paper 3 is your aptitude paper in cons, reason and GK, and most importantly your domain subject, which would your paper 2. So in case you are looking for a comprehensive which is aligned for your success in, you can avail this course by installing our app, or let's say giving us a call on the number given in the description. Right? Start with the question. So our first question for today is, which of the articles of the Indian Constitution talks about freedom of conscience, free profession, practice and public? So as I have discussed in my previous lectures, मैंने आपको fundamental rights basic बता रखे हैं कि fundamental rights क्या होते हैं. So these are certain rights the citizens have, and in case these rights are getting breached or let's say abrogated, they can go to the courts, respective courts like High Court, under various writ jurisdictions which we have already talked about. So there were initially 7 kinds of fundamental rights, but one of those, you let me know in the comment section, one of those got deleted by the 44th amendment and was made a constitutional right under article 300A. Let me know in the comment section what what fundamental right was it. तो जैसे मैंने टाइप्स पढ़ाए हुए हैं कुछ, तो रिलीजन सेंट्रिक अगर आप राइट्स देखोगे, तो योर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 talks about your freedom of propagating, professing or preaching any religion, right? Your article 25 to 28 talks about your religious rights, right? यहाँ पे लेकिन this is not absolute. The only absolute fundamental right is your untouchability one, right? Article 17. So this also has certain reasonable restrictions. मतलब अब अगर आप रिलीजन प्रोपोगेट करने में पब्लिक मोरालिटी को हैम्पर कर रहे हो, या कोई हेल्थ इशू ला रहे हो, है ना, कोई इमोरल चीज़ कर रहे हो रिलीजन के नाम पे, कोई चीज़ इमोरल कर रहे हो, हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, या फिर पब्लिक ऑर्डर पे फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आप रिलीजन के नाम पे कुछ ऐसा करते हो कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, तो ये 3 एक्सेप्शन आर्टिकल 25, 28 won't work, right? So we can say it is not a absolute fundament. So the question is कि ये कौन से आर्टिकल में मेंशन. Very easy to choose. Your article 25. Your article 21A talks about your right to education, which is a fundamental right under article 21A, brought in by the 86th Constitutional Amendment Act of 2000. एक तो 86th Constitutional Amendment Act ने क्या किया था? Education was made a fundamental right. Secondly, it also added a fundamental duty, which is your 11th fundamental duty, right? Everything is a question here. Let us move on to the next question, right? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन में जितना सिखा सकता हूँ सिखा दे रहा हूँ. Let's see, yeah. तो ये मैं आपसे बोल रहा था 25 में योर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन तो है ही, बट साथ में क्या बोलती है बेयर एक्ट? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. मतलब ये राइट मिलेगा बट इट इज सब्जेक्टेड टू whom? योर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. तो इन केस if you are doing anything in the name of article 25 and breaching the public order, morality, or let's say something which is hazardous for the public at large, you cannot use your 25 to 28, right? So there are reasonable restrictions. Coming on to question 2. Question 2 आपसे पूछता है, do we have multiple questions? So yeah, so your question 2 says कि there are certain DPSPs, right? और हमने DPSPs को भी sufficiently समझा हुआ है अपने एग्जाम्स के हिसाब से. तो DPSPs क्या करते हैं? DPSPs
आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या गाइड करते हैं? तो दे गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो certain things, to follow certain things. But the caveat, the warning is, the state is not obliged, the state is not bound. मतलब आप स्टेट को कोर्ट नहीं ले जा सकते ये कहते हुए कि डीपीएसपी हमारा नहीं हुआ, विच मीन्स डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशियबल, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशियबल. DPSPs are mentioned under Part 4 of the Indian Constitution. DPSPs have been taken from the Government of India Act 1935, which took it from the Irish Constitution. Right? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिशर्स ने कॉपी किया, ब्रिटिशर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉपी कर लिया. What else? So that is that. And your DPSPs are mentioned from Article 36 to 51. कुछ DPSPs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमें पढ़ना ही चाहिए. Your Article 40, which talks about organizing village panchayats. इसीलिए you will see in India that we have पंचायती राज and municipalities. इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये दोनों ही नहीं थे, बट थ्रू द 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act, both of these एडवोकेसी कहाँ हो रही थी? डीपीएसपी. मैंने अभी आपको बताया स्टेट के पास जब रिसोर्सेज होंगे डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर देगा, राइट. ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर आर्टिकल 44 दैट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. मैंने पीछे के लेक्चर्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की हुई है, शुड वॉच इट. इट वॉज ऑल्सो अ PYQ. Like which state of India was the first to implement uniform civil code? The answer would be Goa. फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछता है स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे बना दे, एग्रीकल्चर को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे बनाए. इवन वी शुड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज और मिल्क एनिमल्स, राइट. यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है, मिल्क के रिस्पेक्ट में इंडिया इज द लार्जेस्ट producer and consumer of what? Milk, right. National Milk Day is celebrated on 26th of November. Why? Because Varghese Kurian. Who was Varghese Kurian? Was the founder of Amul. Founder of Amul. Amul is a cooperative. मैंने ये भी समझा रखा है पुराने लेक्चर्स में, प्लीज वॉच देम, है ना. आई डोंट वांट टू पढ़ा चुका हूँ. So Varghese Kurian, who is the founder of Amul, was born on 26th November. That is why we celebrate 26th November as National Milk Day. 26th November is also celebrated as the Constitution or Law Day. Why? Because our Constitution was enacted on this very day. इसलिए आपको 26 नवंबर प्रियम्बल में भी तारीख दिख जाएगी. तो PYQ आया, हमने डिस्कस किया हुआ. ऑल इन ऑल द क्वेश्चन सेज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू बैन काउ स्लॉटर्स, maintain our agriculture on very like scientific lines. That is why you will see the government of India has launched missions such as राष्ट्रीय गोकुल मिशन. राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हम क्या करते हैं? We are trying to protect cows and milk animals, right? कि ब्रीड्स अच्छी अच्छी लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी चीज़ को देखते हुए we launched green revolution the year 1960, where we tried or where we used high yielding variety seeds. ठीक, पढ़ते हैं. फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है 48. ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा. इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हम समझ सकते हैं समझने. Your Article 50 is also very important. It talks about there should be clear distinction between the legislature. There should be clear distinction between your executive and judicial. मतलब जुडिशियल फंक्शंस अलग चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग चीज़ है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखो. द रीज़न वाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गॉट अमेंडेड इन द ईयर 1973. डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ एग्जामिनेशन. जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 50 ऑल्सो, राइट. So let us move on to the next question. Who is the Attorney General of India? First of all, let us try to understand who the Attorney General is, right.
जैसे हम सबको अपने आसपास वकील चाहिए होते हैं, वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट्स होती, व्हेन आई से गवर्नमेंट्स, आई वांट टू से द एग्जीक्यूटिव पार्ट. वी हैव थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? वन इज योर लेजिस्लेचर, सेकंड इज योर एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज योर जुडिशरी. अभी मैं गवर्नमेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव से, ठीक? तो बोथ योर गवर्नमेंट वुड रिक्वायर लॉयर्स. क्यों लॉयर्स चाहिए? फ्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है. सबसे ज़्यादा देश में लिटिगेशन कौन करता है? लिटिगेशन का मतलब कोर्ट कचहरी. आप सबको मालूम है, सरकार. अब सरकार को लिटिगेशन करना है तो सरकार को चाहिए क्या? लॉयर्स, राइट? दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑल्सो हैज सम लॉयर्स विद देम. इनको आप सरकारी वकील. सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो सबसे बड़ा लॉयर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो सबसे बड़ा लॉयर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल. Advocate General is mentioned under Article 164 and Attorney General is mentioned under Article 76. Now, there are certain privileges and rights given to both these posts. Now, both of these posts are constitutional posts. क्यों? क्योंकि देखो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में मेंशनड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. जैसे इन दोनों के पास ये राइट होता है कि दे कैन अटेंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. मतलब अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो ये पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है. ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस. ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस. और अगर यही एडवोकेट जनरल होगा तो उसके पास राइट टू ऑडियंस कहाँ की होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट द कैविएट हेयर इज, कैच क्या है, सीखना क्या है? दे डोंट हैव द राइट टू वोट. दे डोंट हैव द राइट टू वोट. ऑल्सो both of these are part of executive. Both of these are part of executive. इनका देयर इज नो रिटायरमेंट एज. नो रिटायरमेंट एज. वकील जब तक रहना चाहता है उनके साथ वो वकील रखना चाहेंगे तब तक वो वकील रहेगा, राइट? देयर अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली. भाई अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर देगा? प्रेसिडेंट. एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर. अब इनका रिमूवल भी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इनको बनाया ही किसने है? वकील कौन चूज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो जिस तरीके से आप वकील चूज करते हो उस तरीके से उसको ड्रॉप भी कर सकते हो. तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एक ही ऑर्डर से उनको रिमूव कर देगा विदाउट गिविंग एनी रीजन, राइट? ठीक है. ऑल्सो रिमेंबर द फैक्ट कि ये अपने प्राइवेट केसेस ले सकते हैं. दीज पीपल कैन टेक देयर प्राइवेट केसेस. प्राइवेट केसेस अलाउड. बट बट रिमेंबर, ये ऐसा कोई भी केस नहीं ले सकते जिसमें गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्टी. So let's say there is a case government versus Sankalp Agnihotri, government of India versus Sankalp. So they cannot take this case. They cannot contest, or let's say they cannot argue on my behalf because the other party is government or main. तो currently कौन है? आर वेंकट रमानी. बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इतना बस याद रखें. बेसिकली आपको यहाँ से याद रखना चाहिए. दिस कैन, दिस विल कीप ऑन चेंज. ठीक. अब जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो बस याद रखें उस समय करंटली कौन. तो दिस माइट चेंज. आर्टिकल 76 of the Indian Constitution deals with the appointment and duties of Attorney General for, right? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. मतलब भाई द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन. ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स का या तो फिर जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 ईयर्स की लिटिगेशन हो, और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. 5 ईयर्स एज अ हाई कोर्ट जज. लेट्स से 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इधर इन हाई कोर्ट और ड्यूटीज क्या होंगी? दे एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स. ये तो समझ में आता है. अगर कोई लीगल ड्यूटी उनको सरकार देती है तो वो भी परफॉर्म करनी है. दे विल रिप्रेजेंट द यूनियन गवर्नमेंट इन द कोर्ट्स.
We have to understand, everyone like would understand this. He has a right to audience in all courts in India. कोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, पार्लियामेंट, राइट. व्हेन आई से पार्लियामेंट आई मीन टू से लोकसभा एंड द राज्य sabha. Although he does not, he does not have the right to vote. He does not have the right to, याद रखेंगे. टेन्योर कुछ होगा नहीं क्योंकि वकील है. तो अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. whenever the president would want, they would simply remove them by a single letter or something like that, right. एक सिंपल से साइन करके रिमूव कर दिया जाए. हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया. लेट्स से सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली वन ब्रांच, दैट टू इन दिल्ली. अगर सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल ब्रांचेस खोले हैं तो दिस पावर इज विद पार्लियामेंट. दिस पावर इज विद पार्लियामेंट. even if we have to increase or decrease the number of judges in supreme court, it is the parliament that gets to decide. Currently we have 33 plus 1 judges the supreme court of india. One is for your cji, right. The language to be used in the supreme court of india is english. Supreme court earlier was called by the name federal court, right. पूछता है the current chief justice of india. So your current chief justice is 52nd chief justice of india, who is Mr. br, your lordship br gavai. br gavai, right. So the answer is br. Also remember the first chief justice of india was harilal j kania sahab. Lordship harilal j kania, the first, the longest serving chief justice of india, longest serving cpi is y is YV Chandrachud. Who is YV Chandrachud? He is the father of 51st CJI of India, who is DY Chandrachud, right. Please remember all of this. Very important for your, अगर आप खास करके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए. चले आगे. Who is the National Security Advisor of India? Everyone knows this. Ajit Doval. Who is the CBI? Who is the CBI Director? Praveen Sood. ये तो देखो रटने की चीजें हैं, बस इसमें एक चीज आप समझ लो प्लीज. सीबीआई कैसा बॉडी है? सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. व्हेन आई से स्टैट्यूटरी, मेरा मतलब होता है कि ये किसी लॉ से बनी है. लॉ से बनी है तो बनाया है पार्लियामेंट ने बनाया. अब सवाल आएगा कौन से लॉ से बनी है? तो लॉ इज दिल्ली स्पेशल पुलिस DSPSC 1946. Delhi Special Police Service Establishment Act of 1946. Delhi Special Police Establishment of Service Act of Service Establishment. Delhi Special Police Service Establishment. Delhi Special Police Service Establishment Act of 1946. This was made by the Britishers for World War. उसके बाद उसको हमने क्या बना दिया? अपना इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी. करंट सीबीआई डायरेक्टर इज IPS प्रवीण जयशंकर साहब. कौन है? तो फॉरेन मिनिस्टर है. के बाद शिव शंकर मेनन वाज द NSA ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मनमोहन. हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? देखो आंसर तो सिंपल याद कर लोगे, संजय मूर्ति, राइट. और समझ लो क्या क्या है. तो एनी बिजनेस वुड हैव अ, तो बताता है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज. इसी तरीके से गवर्नमेंट का मान के चलो जो ये है ना, वही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मेंशन्ड इन आर्टिकल 148. he retires at the age of 65 or 6 years of service, whichever is earlier, right. Also the comptroller and auditor general of india who maintain the accounts of, तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के अकाउंट्स कौन लिखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इसका रिमूवल प्रोसेस
is similar to a Supreme Court judge. Very powerful position. The answer is Sanjay. The answer is Sanjay. मैं आपको देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। के साथ में आपको जो चीज़ें बताता हूँ, प्लीज फोकस ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जी, इसमें भी देखो सिंपल सी बात है, रटने को आप रट लो, जानेश कुमार, है ना, बट समझो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, द इलेक्शंस फॉर योर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और लेट्स से द वाइस प्रेसिडेंट, ये जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, which is a constitutional body mentioned in Article 320. It supervises, directs, and controls all of these elections. All of these elections. Now the question would come: पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स प्लस म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कराता है? So that is State Election Commission, right? Currently, we have three. Like currently the Election Commission is a three-member body. Is a three-member body. We have three election commissioners currently. Initially only one election commissioner was there, but in the year 1989, the 61st Constitutional Amendment Act, we increased our election commissioners from 1 to 3, and also the voting age was reduced from 21 to 18. तो 21 से हमने अपनी वोटिंग एज 18 कर दी थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। साथ में ही इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे एक से कितने कर दिए थे? 3। प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। इलेक्शन कमीशन is mentioned in part 15 of the in right. Which article of the Indian Constitution gives the power Election Commission of India? अभी डिस्कस किया 324, है ना। Which article of the Indian Constitution is related with the power of Parliament to amend the Constitution? देखो, can be of two types. One is your written constitution and another is your unwritten constitution. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के बनाती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो पार्लियामेंट के लॉज होते हैं वही आप ऐड करते जाते हो एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन ब्रिटेन, दिस सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया एंड यूएस। तो जहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक किताब होगी, 100% वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाओगे तो देयर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सिटिंग, देयर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सिटिंग, राइट। बट जहाँ पे भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर हो जाती है। तो यार पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम ना, जो पार्लियामेंट बोल देगी वही कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे है पार्लियामेंट सुप्रीमेसी और यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, द क्वेश्चन कम्स, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड? तो आंसर इज यस, बट ओनली टू अ सर्टेन डिग्री, ओनली टू अ सर्टेन डिग्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं विच कैनॉट बी अमेंडेड, कैनॉट बी अमेंडेड। यही पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड नहीं हो सकते वही कहलाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ हु डिफाइंस व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स whether a thing is a part of basic structure or not. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा पार्ट है which cannot be changed, that part is called as basic structure. Now who gets to define what is basic structure? The Supreme Court did not make it clear. Supreme Court said जैसे जैसे मैं रूलिंग्स दूंगा मैं बताता जाऊंगा this is part of basic structure and this is not. This was held in the case of Keshwananda Bharti case. But still only certain parts of constitution cannot be amended, rest of the parts can be amended, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। मतलब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा चेंज करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पॉलिटी चेंज कर दे, मतलब एनी चेंज दैट इज इंपैक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो विल बी डन अंडर आर्टिकल 368। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। Which of the following schedules of the Indian Constitution talks about three lists? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने क्लॉज लिखा जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब मुझे वहाँ पे ना 28 स्टेट्स और 8 यूटीज के नाम लिखने पड़ते विच वुडेंट हैव लुक गुड। करते क्या है जब आप वो आर्टिकल लिखते हो तो पीछे स्टार लगा देते हो, तो इसका बैकिंग है, इसका पूरा काम है, दैट कैन बी सीन इन लिस्ट 1। लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड, लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल, लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल।
Initially, when the constitution came into force, there were 8 lists, but currently we have 12 lists. मतलब यहाँ पे 4 लिस्ट ऐड हुई हैं, यहाँ पे 4 लिस्ट ऐड हुई हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है. तो योर 9th शेड्यूल जो आया था वो आया था आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. मतलब हमने जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, 51 में पहला अमेंडमेंट आया. कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में तैयार हुआ था. वही कहलाता है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच ब्रॉट इन 9th शेड्यूल. इसके बाद में देखो 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ विच वॉज ब्रॉट इन बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. जो लोग आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर लेते हैं उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ सबका डिटेल पढ़ना है तो यू कैन बाय माय कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स इफ यू वांट टू. मतलब दीज आर गुड लेक्चर्स. मैंने बहुत एग्जॉस्टिवली समझाया है लेयर बाय लेयर जैसे मैं आपको क्वेश्चन. बट यहाँ पे हमारा काम लीगल पढ़ना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है. पॉसिटी ऑफ टाइम है, इसके लिए वील जस्ट स्टिक टू इट. देन कम्स योर 11th शेड्यूल. 11th शेड्यूल गिव्स द पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट. इनमें इनको 29 आइटम्स पे पावर दिया गया है, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये लिस्ट बन गई ना 29 आइटम्स की. देन इज योर 12th शेड्यूल. द 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, द पावर्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. अब देखो के बाद शेड्यूल 1 क्या कहता है. शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया. स्टेट्स एंड यूटीज. करेंटली हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 28. यूटीज कितनी है? 8. देन कम्स योर शेड्यूल 2. देन कम्स योर शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द सैलरीज, सैलरी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज योर सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इन सबका मिनिस्टर्स का सैलरी कहाँ पे मेंशन्ड है? शेड्यूल 2. देन कम्स योर शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द वेरियस ओथ्स, डिफरेंट ओथ्स. मिनिस्टर्स की क्या ओथ होगी, प्रेसिडेंट की क्या ओथ होगी, जजेस की क्या ओथ होगी, तो डिफरेंट ओथ. देन कम्स योर शेड्यूल 4. शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट द राज्यसभा सीट्स, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, बिकॉज राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस, है ना, या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स. यहाँ पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस स्टेट को कितनी सीट देनी है, ये इस लिस्ट में लिखी हुई है, इसलिए शेड्यूल 4 अबाउट राज्यसभा. यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स. देन कमिंग ऑन टू शेड्यूल 5. शेड्यूल 5. देन शेड्यूल 5 आपकी बात करता है कुछ कुछ हमारे देश के ट्राइबल एरियाज की, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की. सेम चीज़ के बारे में शेड्यूल 6 भी बात करेगा, बट शेड्यूल 6 ट्राइबल पीपल, ट्राइबल एरियाज की बात करेगा, बट स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स की. एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जस्ट फोकस. जो 4 स्टेट्स आपके हैं सेम प्रोविजन है, बस 4 स्टेट्स के लिए अलग से है. त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड तामेमी. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. देन इज योर शेड्यूल 7. देन इज योर शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट द 3 लिस्ट. एक तो आपकी बन गई कौन सी? सेंटर लिस्ट. सेंटर लिस्ट. देन इज योर स्टेट लिस्ट एंड देन इज योर कॉन्करेंट लिस्ट. जिसपे सिर्फ सेंटर लॉज बनाए वो होती है सेंटर लिस्ट. यू हैव 102 आइटम्स है. जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बना दे दैट इज अंडर स्टेट लिस्ट. एंड जिसपे सेंटर एंड स्टेट both can make a law is your concurrent list which has around 52 items into it, right? सब कुछ PYQ है, बहुत ध्यान से पढ़ो. Concept of concurrent list was taken from Australia. The concept of center powerful than state, center powerful than state, taken from Canada. क्वेश्चन क्या पूछता है? ये जो 3 लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? तो आंसर इज 7 शेड्यूल. दिस इज फॉर ट्राइब्स. अच्छा हाँ, 8th शेड्यूल बच गया, राइट है ना. तो शेड्यूल 7 हो गया, इसके बाद बचा शेड्यूल 8. शेड्यूल 8 टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस. इनिशियली वी हैड 14 लैंग्वेजेस. जिन लैंग्वेजेस जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इनिशियली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट वी हैड 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट करेंटली वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ये 8 लैंग्वेजेस बढ़ी है इंडिया में. इनके अमेंडमेंट्स भी पूछता है. तो योर 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट से लैंग्वेजेस 14 से 22. So your 8th schedule will talk about language and 4th schedule will talk about allocation of seats in the Rajya Sabha. So your answer is
7th शेड्यूल, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसी को स्लाइड्स में कितने सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 22 लैंग्वेजेस? अभी बताया आपको 8th शेड्यूल। अभी देखो ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली वर इंट्रोड्यूस। 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, सांथली एंड मैथिली वर इंट्रोड्यूस। तो 4 ये, 3 ये, 7। इसके बाद एक अमेंडमेंट और आएगा, है ना। यानी देखो द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड 14 लैंग्वेजेस, है ना। द 70 फिर यहाँ देखो 21st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिड सिंधी। 21st, 71st एंड 92nd, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल 22 लैंग्वेजेस हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द एंटी डिफेक्शन? अभी बताया आपको 10th शेड्यूल। Which of the following article says India, that is Bharat, shall be a union of states? So article 1, it is also a PYQ. India has two official names, India and Bharat. India, that is Bharat, shall be a union of states, which means India is an indestructible union of destructible states. The states can be destructed, but India as a whole cannot be destructed. While in the case of US, the states have this power of seceding themselves from the center, but the states in India cannot secede themselves from the center. The center has the power to play boardmass with state under article 3. Just joking, write down. So it is article 1. अभी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जो बड़े बड़े टाइटल्स होते थे, राजा, राय बहादुर, महाराज, है ना, सुल्तान, ये सारे टाइटल्स को हमने एबॉलिश कर दिया। इससे हम सबको इक्वल ले आए, विच मीन्स राइट टू इक्वालिटी इज बीइंग प्रमोटेड। राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन फ्रॉम 14 to 18। 18 talks about abolition of titles. Although you can have some academic and military titles, so if you're writing, so let's say something as such as advocate, doctor, colonel, you can use it because this is an academic title, right? Which of the following article prohibits trafficking? तो trafficking भी बता रखा है मैंने, 23, 24 में मेंशन है, 23 में आएगा trafficking and bonded labor. बिहार गवर्नमेंट हैज बैंड लिकर, अभी डीपीएसपी की हमने अच्छे से बात की, है ना। तो लिकर बैन आएगा 47 में, आर्टिकल 47। बिहार, गुजरात, इन सब ने बैन कर रखा है एडिशनल पर्पसेस के लिए, ऑल्दो इट इज अलाउड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉलेज? तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? वो लोग जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऑल एमपीज, है ना, ऑल एमपीज ऑफ लोकसभा, बिकॉज देयर इज नो नॉमिनेटेड एमपी इन लोकसभा नाउ, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन हट गया है। राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड एमपीज, नॉट दोस 12 नॉमिनेटेड पीपल, एंड देन योर इलेक्टेड एमपीज ऑफ state legislative assemblies, which is also called as Vidhan Sabha. So electoral college is used for the presidential election. Who gives assent to bills when it is passed by both the houses of the parliament? President साहब, है ना। तो कोई भी बिल लॉ कब बनेगा? when it is passed by Lok Sabha, Rajya Sabha and is assented by the president of India. The parliament comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. Article 79. That is your right answer. Which of the following is the lower house of the parliament? Lok Sabha, है ना, Lok Sabha is the lower house. Which of the following is the first woman judge of Supreme Court of India? So Fatima Bibi, something which you have to remember. Justice Fatima Bibi, who was also the ex-governor of, let me know the state. So Justice Tamil Nadu. Justice Fatima Bibi was the first women judge of Supreme. President rule is imposed. So there are three sorts of emergencies in India. 352 में national emergency, 356 में state, 360 में financial. 356 में state emergency लगती है जो president लगाता है गवर्नर की एडवाइस पे, राइट। बहुत मिसयूज भी होती है, तो जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 356. Which of the following schedules you will find the name of states and union territory? Schedule 1 मैंने भी detail से बताया. So that is it for it. I'll see you on Wednesday. We'll have a session scheduled on Wednesday. So keep following these classes, because these classes will actually help you cover your static portions without taking a lot of toll. मेहनत भी कम पड़ेगी, आप बस 25 क्वेश्चंस करते जाइए। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, इवन यू नो दिस, वो 25 क्वेश्चंस नहीं, लगभग 70-80 क्वेश्चन हैं, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में वी आर ट्राइंग टू कवर एटलीस्ट 10 फैक्ट्स. So that means even if you're following a single session, you are at least learning 60 to 70 new things. Do watch it. In case you are liking it, please share it to the people who might find it useful, and do give us a comment, or let's say like the video if you're liking it, because I know people are watching it but they're not liking it. We don't say this a lot, but in case you are actually appreciating it, do like it so that we can bring in more and more content like it. And lastly, again, I would like to tell you, in case you are looking for a full-fledged course, prepare for the CUET 2026 and the 2027 attempt. You can avail our courses by giving us a call on the number given in the description, or calling our app store या फिर Play Store हमारा ऐप इंस्टॉल करके install it and go through segment, buy this course. Although the price might seem very high, तो अभी ऑनलाइन में चीज़, बट द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. आप ये हमारे वीडियोस को अगर अच्छे से फॉलो करते होगे, कंटेंट फॉलो करते होगे, तो आपको वो विजिबल डिफरेंस दिखता होगा. इट्स
good qualified people taking classes there. Thank you. That's it for today. I'll see you Wednesday now. Thank you.